ओके, डाटा हैंडलिंग, ठीक है। Yes, sir. डाटा Handling. हैंडलिंग। कैन एनीवन टेल मी what do you mean by data? So number. Number like 2, 3, 4, 5, 6, 11, 19. These are data. Tell me. These are not the data. Okay. What is data? Data is raw information. What is it? It is a raw Fine. information. Okay. Yes, sir. Raw information. Okay. And we Yes, collect sir. this raw information. Okay. We collect this Yes. raw information and compare this raw information to certain other quantities. It is okay. And compare Yes. it with certain things. Okay. So if anyone asks you what is data, what you say, it is the raw information, and we collect this raw information to compare it with certain things. Okay. For Yes. example, you perform an experiment. Okay. In your chemistry lab, you perform an experiment. Okay. Or anywhere you perform an experiment. Suppose what you will do, one side there is time, okay, and other side there is the distance. Is it okay? Yes, sir. Suppose in your watch you notice that it is 10:05 a.m. Is it okay? And Yes, suppose sir. Manav is walking on the road. Okay. Suppose this is the initial position, and what you observe at 10:05 p.m. Manav is 20 meters away from the origin. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. And 10 a.m. Manav is 30 meters away from the origin. That means this point. Now 10:15 a.m. Manav is 40 meters away from the origin. When 10:20 a.m. Manav is 50 meters away from the origin. Okay. What is this? These are the data. Okay. Because this is the raw information. Is it clear? And where we use it, we can use it to compare that in this time interval how much distance Manav will cover. Is it okay? Yes, sir. Suppose in your school declare result. Okay. And in that result the school declare first, second, third. Okay. How the Yes. school know that he got the first position, he got the second position, and he got the third position? For that, what the school management will do? First of all, the school management will, the examination department of the school will collect all the marks. Collect all marks. Is it clear?
of all the Yes, sir. student of that class. Okay, and this marks is what? This marks is the raw information. देखो आपके स्कूल में, आपके क्लास में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसका डिक्लेरेशन कैसे होता है? इसके लिए आपके स्कूल के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट क्या करती है? आपने जो एग्जाम दिया उसमें जो हर एक सब्जेक्ट में आपने मार्क्स स्कोर किया, वो सारे मार्क्स को कलेक्ट करती है. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. मार्क्स क्या है? दिस मार्क्स इज नथिंग बट द रॉ इंफॉर्मेशन. इज इट क्लियर? Right. Yes, एंड sir. ऑन दैट रॉ इंफॉर्मेशन दिस मार्क्स के बेस पे क्या करता है? कंपेयर करता है, हर एक के मार्क्स को कंपेयर करता है. इज इट ओके? Yes, sir. रिजल्ट पे पहुंचता है. जो सबसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करता है सारे सब्जेक्ट मिला के, उसको फर्स्ट डिक्लेयर करता है. जो इससे फर्स्ट से कम मार्क स्कोर करता है उसको सेकेंड डिक्लेयर करता है. जो सेकेंड से कम करता है उसको थर्ड करता है, एंड सो ऑन. इज इट क्लियर? डाटा क्या है? एक रॉ इंफॉर्मेशन है, एंड दिस रॉ इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड टू कंपेयर इट विथ सर्टेन थिंग्स. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes. sir. I collect the data that is 20 meter, 30 meter and 40 meter, 50 meter, and we compare it that in which time interval he is faster. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. And what I have also taken another example, that is the marks. Okay, your school will Yes, sir. collect all the marks, and marks is nothing but the raw information, and on the base of this marks he compares the marks of all the students, and after comparing he comes to a conclusion that who is first and who is second and who is third. Is it clear? Yes, sir. Huh? Yes, sir. Yes, sir. Okay. You can also compare. जैसे क्या बोलते हैं, आज बहुत गर्मी है, कभी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, आज मौसम सही है कि नहीं? ये किस बेस पे Yes, करते हैं? sir. ये जो बेस क्या होता है इसका कहने का? एक्चुअली हम क्या करते हैं, सपोज करो आज का टेम्परेचर नोट करते हैं. जैसे आज है, मान लेते हैं आज है 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. मान लो एक डेट 1 को 22 डिग्री सेल्सियस है, 2 को 23 डिग्री सेल्सियस है, 3 तारीख को मान लो 24 डिग्री सेल्सियस है, फिर मान लो 4 को कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है. ये क्या हुआ? ये सब क्या हुआ? रॉ मटेरियल हुआ, ये रॉ इंफॉर्मेशन हुआ नहीं. और इस रॉ इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, कंपेयर करते हैं, और इस बेस पे हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं, कौन सा दिन अधिक वार्मर है, कौन सा डे अधिक कूलर है. इज इट ओके? Yes, sir. अब देखो, क्योंकि ये एक रॉ इंफॉर्मेशन है, दैट मीन्स इसका क्या चाहिए? हैंडलिंग भी तो होना चाहिए. हाँ, इसको क्या बोलते हैं? डाटा हैंडलिंग. डाटा हैंडलिंग. अब देखो डाटा हैंडलिंग क्या होता है, इसको डिलीट करता हूं, ठीक है? डाटा हैंडलिंग. Handling. देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले हम डाटा को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं. क्या करते हैं? Collect. देन डाटा को क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं, है कि नहीं? हाँ, उसके बाद क्या Yes, करते हैं? sir. रिप्रेजेंट करते हैं. ऑर्गेनाइज करने के बाद Represent. रिप्रेजेंट करते हैं. Present. ठीक है? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. इज इट ओके? और देन क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं. क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं. Compare. ठीक है? तो देखो डाटा को सबसे पहले क्या किए? कलेक्ट किए. कलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज किए सिस्टमेटिक वे में. उसके बाद क्या किए? रिप्रेजेंट किए, फिर इसको कंपेयर किए. कंपेयर करने के बाद क्या करते हैं? कंक्लूजन निकालते हैं या रिजल्ट पे पहुंचते हैं. इज इट ओके?
तो ये सारे स्टेप मिला के क्या होता है, जो कि डाटा के ऊपर हम लोग परफॉर्म करते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, डाटा हैंडलिंग बोलते हैं। इज इट ओके? Yes, sir. इज इट ओके और नॉट? Yes, अब देखो sir. कलेक्टिंग डाटा क्या Yes, होता है, जैसे देखो आपने एग्जाम दिया है कि नहीं, अब हर एक क्लास का मार्क्स, हर एक स्टूडेंट का मार्क्स क्या होगा, हर एक सब्जेक्टिव टीचर के पास होगा, होगा कि नहीं होगा? अब हर एक टीचर क्या करेंगे, Yes, sir. जो आपका एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, हर एक टीचर से आपके मार्क्स को कलेक्ट करेगा, है कि नहीं? Yes, sir. कलेक्ट करने के बाद वो क्या करेगा, उसको ऑर्गेनाइज करेगा। ऑर्गेनाइज कैसे करेगा, जैसे साइंस का मार्क्स है एक साथ रखेगा, मैथ का मार्क्स है एक साथ रखेगा, एसएसटी का मार्क्स है एक साथ रखेगा, और सबको रोल नंबर के हिसाब से रखेगा। इज इट क्लियर? ये Yes, क्या हुआ, Yes, sir. ऑर्गेनाइज करना डाटा का, है कि नहीं? ऑर्गेनाइज Yes, sir. रिप्रेजेंट करेगा, और रिप्रेजेंट का मतलब क्या, रिप्रेजेंट द डाटा टू ड्रॉ इन्फ्रेंस फ्रॉम इट। ओके, जैसे आप लोग एग्जाम दे रहे थे, ऑनलाइन एग्जाम दिए हो, यस सर। कुछ Yes, इस sir. तरह का बार ग्राफ मिलता था रिजल्ट में, लास्ट में, yes, sir. हाँ? Yes, कुछ इस टाइप का बार ग्राफ ऐसे मिलता था, कुछ इस तरह का Yes, sir. मिलता था कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. मिलता था। सब बोलो, yes, sir. नहीं मिलता था? सर अब मिलता था। मिलता। जो जो गूगल क्रोम पे जो एग्जाम हो रहा था उसमें इस टाइप का बार ग्राफ आपको मिलता। ये क्या हुआ, यहाँ पे जो डाटा को वो क्या किया, पहले कलेक्ट किया, फिर ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज मींस अरेंज किया, और उसको क्या किया, रिप्रेजेंट किया इस ग्राफ के ऊपर। ओके, फिर इस ग्राफ पे क्या हुआ, कंपेयर हुआ इस डाटा का, और उसके बेस पे आपके रैंकिंग को बताया जाता था। इज इट ओके और नॉट? Yes. यस सर। तो ये सारा स्टेप होता है, डाटा के हैंडलिंग में यूज होता है। एक एक स्टेप को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखो सबसे पहले क्या था, कलेक्टिंग डाटा। ठीक है, अब देखो कलेक्टिंग डाटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा डिपेंड अपॉन द फर्दर रिक्वायरमेंट ऑफ द डाटा। अब डाटा को हम लोग कलेक्ट करते क्यों हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या चीज रिप्रेजेंट करने के लिए? देखो सर जिस रिजल्ट। चीज का कोई फ्यूचर में यूज नहीं हो, फ्यूचर में कोई यूज नहीं हो, उसको मैं कलेक्ट करूंगा क्यों? इसका मतलब क्या है, डाटा को इसलिए कलेक्ट करते हैं क्योंकि इसका क्या होता है, फ्यूचर में यूज होता है। इज इट ओके? सर आवाज रुक रुक के आ रहा है। मैंने बोला डाटा को कलेक्ट क्यों करते हैं, डाटा को कलेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इसका क्या फ्यूचर में यूज है। नहीं, सपोज करो आप यूनिट टेस्ट देते हो Yes, sir. या क्लास टेस्ट देते हो, Yes, sir. ठीक है? तो जब आपका रिजल्ट बनता है, जैसे इस बार देखे होगे आपका रिजल्ट बना होगा, उसमें आपका क्लास टेस्ट एनुअल रिजल्ट जब फॉर्म किया गया, उसमें क्लास टेस्ट का भी मार्क्स एडेड था। यस सर। इज इट ओके और नॉट? ओके यस सर। ये ऐड क्यों किया गया, क्योंकि स्कूल के द्वारा क्या था, डाटा कलेक्ट करके रखा गया था, तो है कि नहीं? यस सर। आप लोग अपने कॉपी पे, अपने नोटबुक पे टेस्ट दिया था, क्लास टेस्ट, टीचर ने चेक यस किया, सर। टीचर ने फिर क्या किया, आपके कॉपी पर से मार्क्स अपने पेज पे लिख के मैनेजमेंट को दे दिया। इज इट ओके? ये क्या हुआ, मैनेजमेंट ने क्या की, डाटा को कलेक्ट किया, आपके मार्क्स को, आपके यूनिट टेस्ट के मार्क्स को कलेक्ट किया। क्यों कलेक्ट किया, क्योंकि उसको आपके एनुअल फंक्शन में जोड़ के आपके परफॉर्मेंस को बताना था। इज इट ओके? Yes. यस सर। इसलिए डाटा को कलेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि डाटा का क्या होता है, यूज होता है Future में फ्यूचर में। use।
ठीक है। और इस बेस पे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज का प्रोग्रेस को कंपेयर भी करते हैं। सपोज करो आप क्लास 7 में हो, ठीक है, आपने क्लास 6 में एग्जाम दिया, क्लास 6 में आपका रोल नंबर था 10, इज इट ओके? जब आपने क्लास 7 में एग्जाम दिया, सपोज करो आपका रोल नंबर क्या हो गया, 5, ठीक है। तो ये बताओ, क्या आप इस दोनों को कंपेयर कर सकते हो ना कि क्लास 6 के कंपैरिजन में आपका क्या अधिक प्रोग्रेस है क्लास 7 में, है कि नहीं? सर। Yes. और ये चीज कब होगा, जब क्लास 6 का भी डाटा स्टोर होगा। अगर क्लास 6 का डाटा रहता ही नहीं, सर। स्कूल से डाटा गायब हो जाए, मिट जाए, क्या मैं बोल सकता हूँ कि आपका क्लास 6 के कंपेयर में आपका परफॉर्मेंस कैसा है? No. नो सर। नहीं बोल। नो सर। तो इसलिए जो डाटा को कलेक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि फ्यूचर यूज में यूज करते हैं। और जो प्रीवियस डाटा होता है, पास्ट डाटा होता है, पास्ट डाटा, इसको यूज करके, इसको स्टडी Future करके में हम लोग use क्या होता करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग भी करते हैं। Past data. इज इट ओके? Yes, यस sir. सर। जैसे Yes. जब आपको रिजल्ट मिलता, सपोज करो कोई रोल नंबर 10 था, उसका रोल नंबर 15 हो गया, घर पे क्या बोलते हैं, कोई ना बेटा अब और मेहनत करो तब अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं? ये किस बेस पे यस करते हैं? सर। ये कि जो पास्ट डाटा के बेस पे फ्यूचर का प्लानिंग किया जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पास्ट डाटा को कलेक्ट करते हैं। इज इट ओके? यस सर। Okay. If we have to compare the marks of the topper in different class, then we need the data of all the class, not only one class having topper. कहने का मतलब क्या? अब देखो, इस बार आपका एनुअल फंक्शन हुआ चाहे वर्चुअली, उसमें पूरे स्कूल Yes. में जो टॉप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रैंकर था, उसका घोषणा किया गया था, डिक्लेरेशन किया गया था, पता है आपको? हाँ जी, आपके स्कूल में Yes. जो वर्चुअल एनुअल फंक्शन हुआ था, उसमें जो आपके स्कूल में फर्स्ट किया है, सेकेंड किया होल स्कूल में, और थर्ड किया है, उसको डिक्लेरेशन हुआ था उसका, पता है आपको? नो सर। नहीं, जब भी देखना, आपका वीडियो जो है ना आपके एनुअल फंक्शन का आपके यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, ठीक है। देखो, तो क्या किया गया होगा, सबसे पहले हर एक स्कूल के टॉपर, हर एक क्लास के टॉपर के मार्क्स को कलेक्ट किया गया होगा। इज इट ओके और नॉट? Yes. Yes sir. हर एक क्लास के टॉपर का मार्क्स कैलकुलेट किया हो, कलेक्ट किया गया होगा। कलेक्ट करने के बाद क्लास बाय उसको अरेंज किया होगा, क्योंकि जब Yes sir. जब इस मार्क्स को कलेक्ट, जब जब हर एक क्लास के टॉपर के मार्क्स को कलेक्ट किया गया होगा, ये क्या होगा, रैंडम में होगा। इज इट ओके? Yes sir. इज इट ओके? जब Yes ये sir. मार्क्स रैंडम में होगा, इसको क्या किया होगा, आफ्टर कलेक्शन, इसको क्या किया होगा, अरेंज किया होगा, है कि नहीं? हर एक क्लास बाय Yes, अरेंज sir. किया होगा। जो रैंडम डाटा, जो हम लोग रैंडम डाटा को कलेक्ट किए, उसका जो अरेंज किए, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गेनाइजेशन Organization of डाटा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या बोलते हैं, अरेंजिंग द डाटा, अरेंजिंग द रैंडम डाटा। इज इट ओके? इज इट क्लियर? यस सर। अरे जैसे देखते हो, कभी देखे हो हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखो, हमको क्या करना है, मान लो स्कूल के टॉपर को डिक्लेयर करना है, ठीक है, जो स्कूल में टॉपर कौन है, तो हम क्या करेंगे, हर एक क्लास टीचर को क्या बोलेंगे, आप अपने क्लास के टॉपर का मार्क्स और नाम सेंड कीजिए। इज इट ओके? यस सर Yes sir. नेम, Yes, मार्क्स, क्लास, ये तीन चीज क्या होंगे, क्लास टीचर से डिमांड करेंगे। हर एक क्लास टीचर क्या करेगा, अपने अपने क्लास का, क्लास जो टॉपर है उसका नाम देगा,
उसका मार्क्स देगा और उसका क्लास देगा। इज इट ओके? लेकिन जब ये देगा तो Yes, क्या sir. होगा? अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होगा। इज इट क्लियर? मतलब क्या, ये क्या होगा? रैंडम में होगा कि नहीं? मानो क्लास 1 का टीचर 10:05 पे दिया, क्लास 2 का टीचर मान लो 12 बजे दिया, 12 बजे नून में, क्लास 3 का टीचर मान लो 10:15 AM में दे दिया, तो क्या ये डाटा रैंडम वे में स्टोर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? इस रैंडम डाटा को क्या करेंगे तपन जी? क्या करेंगे? चार्ट बनाएंगे, एक टेबुलर फॉर्म बनाएंगे, जहां एक और क्या होगा? क्लास होगा, दूसरे और क्या होगा? नेम होगा, Name. और यहाँ पे क्या होगा? मार्क्स होगा कि नहीं होगा? तो इसी Yes, sir. अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. ओके। अब देखो क्या करते हैं। सपोज करो क्लास 1 में कोई ए है, मान लो इसको 486 मार्क्स आया, ठीक है। मान लो 2 में कोई बी है, इसको 493 मार्क्स आया। कोई क्लास 3 में कोई सी है, मान लो इसको 481 मार्क्स आया। क्लास 4 में कोई डी है, मान लो इसको 463 मार्क्स आया, ठीक है। अब ये डाटा क्या हो गया? Yes, sir. हो गया। इज इट ओके? Yes, sir. आफ्टर Yes, अरेंजिंग sir. डाटा हम लोग क्या करेंगे? रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू निकालेंगे। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। अब ये होता क्या है? तो देयर मस्ट बी ए पर्टिकुलर वैल्यू which represent the complete data. This is the average of the data. The average lie between the smallest and the largest number of data. So it is called the central tendency of the grouping data. अब क्या करेंगे? सिंपली हम क्या करेंगे? हम अभी हर एक नंबर को देखो, डाटा क्या होता है? बहुत इसी तरह क्या होगा? हर एक क्लास का लेंदी वे में होगा, है कि नहीं है? अब हम क्या करेंगे? जो ये डाटा को कलेक्ट किए, उसको अरेंज कर दिए, अब हम क्या करेंगे? ये सारे मार्क्स का मीन निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और क्या करेंगे? एक बीच का डाटा फाइंड करेंगे, मिडिल डाटा फाइंड करेंगे। ओके, क्या करेंगे? मिडिल डाटा को फाइंड करेंगे। अब क्या करेंगे? मिडिल डाटा से कंपेयर करेंगे। कुछ ऐसा डाटा होगा जो मिडिल डाटा से ऊपर होगा, कुछ ऐसा डाटा होगा जो मिडिल डाटा से क्या होगा? नीचे होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब जो Yes, sir. और हमको फाइंड क्या करना? टॉपर ऑफ स्कूल। क्या फाइंड करना? टॉपर ऑफ स्कूल। हम क्या Yes, sir. करेंगे? जो इसके नीचे वाला मार्क्स है उसको छोड़ देंगे, जो इस मिडिल डाटा से ऊपर का मार्क्स है उसको कंसीडर करेंगे, है कि नहीं? और उसको कंपेयर करेंगे और अपने कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। इज इट ओके? Yes, sir. अब देखो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले यूज करते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन। और ये अर्थमेटिक मीन होता क्या है? अर्थमेटिक मीन को ही हम लोग बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। Average. एवरेज निकालने के लिए क्या होता है? ठीक है, अर्थमेटिक एम से रिप्रेजेंट होता क्या है? समेशन ऑफ सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय
Yes. नंबर ऑफ Number of objects. Student. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कितने ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड कर दो, उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, आपको क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन निकल कर चला आएगा। और इसी अर्थमेटिक मीन को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नो साउंड फ्रॉम योर बैकग्राउंड। Yes, sir. Make sure that there is no sound from your background. Suppose करो क्लास 7 में 8 स्टूडेंट हैं। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं? 8। 8. ठीक है। अब इस 8 स्टूडेंट में सपोज करो साइंस का मार्क्स कुछ इस तरह है, ठीक है, कुछ इस तरह Yes, है, sir. ठीक है। मान लो 40, 45, 50, 55, 65, 55, 70, 80, 90, कितना हुआ? एंड 95। ये क्या है? इस 8 स्टूडेंट के द्वारा क्लास 7 के 8 स्टूडेंट के द्वारा साइंस का मार्क्स है, ठीक है। Yes, sir. अब देखो इसमें से सबसे अधिक मार्क्स कौन स्कोर किया, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। और अर्थमेटिक मीन के लिए क्या करेंगे, वी विल सम अप ऑल द मार्क्स। इज इट क्लियर? क्या करेंगे, Yes, sir. सारे मार्क्स को जोड़ देंगे, ठीक है। 45 प्लस 50 प्लस 65 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90। इज इट ओके? और Yes, sir. इसको क्या करेंगे, Plus 95, मेरा sir. ये क्या है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन है। इज इट ओके? ये क्या है, सम ऑफ Yes, ऑल द sir. ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे मेरा ऑब्जर्वेशन क्या था, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स ऑफ 8 स्टूडेंट इज आवर ऑब्जर्वेशन। इज इट ओके? एंड टू Yes, sir. Yes, sir. 95 छूट गया है. to calculate the arithmetic mean or the average, what we have to do, first we have to find the sum of all the observation plus 95. First we will find the sum of all the observation, and after finding the sum of all the observation we divide the sum of I do number of observation. the number of observation. How many number of observation are here? 8. 8. 8. That means 8. sum of all the observation is divided by 8, and this is nothing but the arithmetic mean. Can you tell me what is the arithmetic mean here? Can you tell me? $45, $50, $65, Sir, 478. 478. 78 कहां से हो जाएगा बे? 5, 5, 5, 5, 5, लास्ट में तो 5 ही होगा। 500. 15 कितना है? 550. 4। अरे जीरो ही आएगा, 4 को 5 है, लास्ट में जीरो ही आएगा। Sir, 550. सही बोल रहे हो ना? Yes, sir. चलो 550 डिवाइडेड बाय 8 क्या आएगा, ये करते हैं। 550 डिवाइडेड बाय 8 कितना होगा? Sir, 68.75. 68.75। अब देखो ये क्या हो गया, इसका अर्थमेटिक मीन हो गया। इस ऑब्जर्वेशन का क्या हुआ, अर्थमेटिक मीन हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. अब देखो कोई भी मार्क्स ऐसा है जो 68.75 है, कोई ऐसा मार्क्स है जो 68.75 है? No, sir. नहीं No, है। sir. मींस जो अर्थमेटिक मीन निकल के आएगा, इट मे बी
equal to the marks that is observed or may not be. समझ में आई बात? जो मार्क्स है उसके इक्वल टू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. इज इट क्लियर? बट एक चीज क्लियर रखना, जो 68.75 है, इससे कुछ मार्क्स क्या होंगे, कम होंगे, और कुछ मार्क्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे. जैसे 45 क्या है, हमारा अर्थमेटिक मीन से कम है. 50 क्या है, 68.75 से कम है. 65 क्या है, 68.75 से कम है. 55 क्या है, 68 पॉइंट से कम है. इज इट क्लियर? अब देखो 70, 80, 90, 95 ये क्या है, हमारे अर्थमेटिक मीन से ज्यादा है. ओके, ज्यादा है. तो क्या हमने Yes, देखा, sir. जो अर्थमेटिक मीन है ये एग्जैक्ट ऑब्टेन मार्क्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. इज इट ओके? लेकिन कुछ वैल्यू क्या होंगे, कुछ ऑब्जर्व वैल्यू क्या होंगे, जो कि लेस देन होंगे, किससे, अर्थमेटिक मीन से. और अर्थमेटिक मीन से. कुछ क्या होंगे, ग्रेटर देन होंगे, किससे, अर्थमेटिक मीन से. अर्थमेटिक मीन से. सपोज करो एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, ठीक है, और इस 10 Yes, स्टूडेंट का जो एज वेट है, एक का है 10 kg, एक का है 20 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg, 60 kg, 70 kg, 80 kg, 90 kg, 100 kg. ठीक है, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट है, और सबका वेट कितना है, पूरे 10 स्टूडेंट का वेट ये ऑब्जर्व किया गया है. अब हम क्या करेंगे, हमको अर्थमेटिक मीन निकालना है. हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितना भी ऑब्जर्व वेट है सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. नहीं जी, तो Yes, sir. तो क्या होगा, ये Yes. 30 60 100 Sir, 550. 550 50. 50. Yes, sir. 550. 550 क्या 550, हुआ, sir. ये क्या हुआ, सम ऑफ द ऑब्जर्व डाटा. इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है. अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 10. 10. 10 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा. 55. अब बताओ, इसमें से कोई ऐसा लड़का है जिसका वेट 55 है? No, sir. नहीं है. No, sir. नहीं है ना? No, तो sir. याद रखना, जो अर्थमेटिक Yes, मीन sir. है वो हमारे जो ऑब्जर्व डाटा है उससे मैच करेगा भी, नहीं भी कर सकता है. जैसे यहाँ पे क्या हुआ, नहीं मैच किया. इज इट क्लियर? Yes, कोई sir. जरूरी Yes, नहीं sir. है Yes, sir. मेरा अर्थमेटिक मीन होगा Yes, वो sir. इसी में से कोई एक होगा. नो, इसमें से कोई एक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. नहीं भी हो सकता. क्लियर? कोई जरूरी नहीं है हमेशा नहीं ही नहीं होगा, हो भी सकता है. ठीक है, जैसे देखो 40 40 40 40 40. अब बताओ इसका समेशन कितना होगा, इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा. Sir, 200. अर्थमेटिक मीन Sir, 40 होगा अर्थमेटिक मीन. 40 होगा. यहाँ पे क्या है, जो मेरा अर्थमेटिक मीन है हमारे ऑब्जर्व डाटा से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है. Yes, कर रहा है. समझ में आया? Yes, sir. Sir. तो यही मतलब होता है अर्थमेटिक मीन का. ठीक है, अब देखो कुछ डाटा Yes, sir. 55 मानो यहाँ कहीं होंगे, कुछ एज क्या है, कुछ स्टूडेंट का वेट क्या है जो 55 से कम है, और कुछ का क्या वेट 55 से ज्यादा है. इज इट क्लियर? Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट? No. No, sir. No, sir. No, sir. कोई हमें एक्सपेरिमेंट किए जिसमें 5 एक्सपेरिमेंट हुआ. ठीक है, Yes, sir. और इस एक्सपेरिमेंट में मान लो जो हमको ऑब्जर्व डाटा मिला 2 4 5 3. ठीक है, ये मान लो हम लोगों ने 4 3 10. ठीक है, ये मेरा ऑब्जर्व डाटा है. इज इट ओके? Yes, sir. अब बताओ इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा. 24. हाँ? 13, 15, 18, 22, 2, 24, 24, 24. 5.
24 24 upon 5 5, इसको 24 upon 5 आ गया। तो चलो इसको 4 ही डाटा मानते हैं, ठीक है? इसको 4 मानो 4.8 और इसको हटा दो। अब क्या हो जाएगा? 14 upon 4 होगा, 5 यस सर Yes, sir. 4 होगा। ये क्या होगा? 7 upon 2, दिस इज इक्वल टू 3.5। इसका मतलब क्या है कि देखो, जिसका एज मानो ये क्या है, 4 स्टूडेंट का एज है, इज इट क्लियर? यस सर एक का 2 साल, 4 साल, 5 साल, 3 साल, लेकिन एवरेज मेरे पास कितना आया? 3.5 ईयर। इसका मतलब क्या जानते हो? इसका भी एज 3.5 ईयर है, इसका भी एज 3.5 ईयर है, इसका भी एज क्या है? 3.5 ईयर है, इसका भी एज क्या है? 3.5 ईयर है। यही मीन होता है अर्थमेटिक मीन का। इज इट ओके? अब देखो, यस सर एक्चुअल में Yes, इसका sir. एज कितना है? 2 इयर्स है,